مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور جیزس لور چینل کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ اس سے پہلے ہم کلام کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان چاچو شانی ہیں، وہ دعا کر کے میٹنگ کا آغاز کریں۔ جی شکریہ بھائی۔ تو جی ناظرین آئیں میرے ساتھ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس زندہ خدا خالق کے حضور چلیں، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ ہم اسے یاد کریں اور اسے عزت و جلال دیں۔ قدوس قدوس زندہ آسمانی باپ، آسمان و زمین کے خالق اور مالک، بزرگ وفادار خدا، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں پیارے خداوند، اس وقت اس گھڑی اس موقع کے لیے پیارے خداوند، اس خوبصورت لمحہ کے لیے پیارے خداوند جو تیری پاک حضوری میں گزر رہا ہے۔ اور پیارے خداوند دعا کرتے ہیں پیارے خداوند تیرے بندہ کے لیے، تیرے منصوب کے لیے پیارے خداوند، جس کے منہ میں پیارے خداوند تیرا پاک کلام ہے پیارے خداوند، تو آج پیارے خداوند اپنے بندہ کو اپنی روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پیارے خداوند استعمال کرنا، اور تیرا پاک کلام پیارے خداوند آج شام ہمیں پیارے خداوند تازگی بخشے پیارے خداوند، اور ہم تیرے پاک کلام کے اوپر پیارے خداوند اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے ہوں۔ مسیح یسوع کے جلالی نام کے وسیلہ سے یہ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ تو جی بھائی شرون آپ آئیں اور ناظرین کے ساتھ کلام مقدس میں سے شیئر کریں۔ جی شکریہ بھائی۔ ہیلیلویا۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، آج پھر خداوند نے مجھے موقع بخشا کہ ہم سب اس کے کلام میں سے سیکھنے والے بنے۔ جیسے کہ پچھلے حصہ میں ہم نے سیکھا تھا آخر کیوں یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لینا چاہیے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ بپتسمہ کب لینا چاہیے، بپتسمہ کے بعد کیا کرنا چاہیے، کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، بائبل ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا دوسرا باب، اس کی 37 آیت سے ہم غور کریں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 37 آیت سے غور کریں گے، جس میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے۔ پھر بات آ گئی وہی بپتسمے کی۔ بپتسمہ کس کے نام سے لینا ہے؟ یسوع مسیح کے نام سے۔ جب بپتسمہ لیں گے تو کیا ہوگا؟ جب بپتسمہ لیں گے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ ساتھ ہی انعام نہیں مل جائے گا، اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، اس کی پیروکاری کرنی پڑے گی، اس کی پاکیزگی کو اپنانا پڑے گا، اس کے دکھوں میں شریک ہونا پڑے گا، تب جا کے روح القدس انعام میں ملے گا۔ ہیلیلویا۔ اس کے لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا۔ جس نے یسوع کا کلام قبول کیا، یسوع کی باتوں کو قبول کیا، اس نے کیا لیا؟ بپتسمہ، پانی کا بپتسمہ لیا۔ اس کے بعد اور اسی روز کتنے لوگ، ہم بائبل میں سے سیکھیں گے کتنے لوگ تبدیل ہو گئے، کتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا اور یسوع نام سے بپتسمہ لیا۔ بائبل بتاتی ہے اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ اس کے بعد اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ میرے عزیزو، پانی کے بپتسمے کے بعد 4 چیزیں جو ہیں ہمیں بائبل سکھاتی ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا ہے۔
पहली चीज रसूलों से तलीम पानी है, दूसरी चीज रफाकत रखनी है। रफाकत ईमानदारों से रफाकत रखनी है, जो यीशु के साथ चलते हैं, जो उसके पैरोकार हैं, उनसे रफाकत, अच्छी रफाकत रखनी है, बुरी रफाकत नहीं। उसके बाद तीसरी चीज रोटी तोड़ने में जो हम पाक शराकत लेते हैं। तीसरा, दुआ करने में मशगूल रहे, दुआ करने में लगे रहना है, तब ही जाके आप इनाम पाएंगे। ऐसे नहीं इनाम मिल जाएगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, उसकी पैरोकारी करनी पड़ेगी। रूहुल कुदस को आज भी कई लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। ऐसे नहीं रूहुल कुदस, पतरस ने क्या कहा, बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुदस इनाम में पाओगे। उसके साथ ही नहीं इनाम मिल जाएगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, उसको वफादारी दिखानी पड़ेगी, तब जाके इनाम मिलेगा। क्योंकि ये चार चीजें पानी के बपतिस्मे के बाद हमारी जिंदगी में जो भी पानी का बपतिस्मा लेता है, जो भी यीशु नाम से बपतिस्मा लेता है, जो उसको कबूल करके बपतिस्मा लेता है, चार चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई, रसूलों से तलीम पाना। दूसरी चीज रफाकत रखना, अच्छी रफाकत। तीसरी चीज रोटी तोड़ना, और चौथी चीज दुआ में मशगूल रहना। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिया से जाहिर होते थे। रसूलों के जरिया से यह है रूहुल कुदस का काम, क्योंकि उनके पास उनको इनाम मिला था। कैसे मिला था? वो यीशु के साथ चलते थे, यीशु के साथ वफादारी के साथ चलते थे, उन्होंने पाकीज़गी को अपनाया। चलते चलते क्या हुआ? यीशु के साथ चलते चलते आखिरकार यीशु, एक ऐसा टाइम आता है खुदा को इंसान की किसी टाइम अदा पसंद आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी अदा पसंद आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी बात पसंद आ जाती है, उसका झुकना खुदावंद की हजूरी में खुदा को पसंद आ जाता है, तो खुदा उस पर रहम कर देता है। चाहे कितने भी गुनाह हों, उन गुनाहों को खुदा भूल के उसको माफ़ कर देता है और उसको फिर से पाक कर देता है। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो सवाब बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज़ गौर करने की ज़रूरत है, हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। आज जब लोग हैकल में जमा होते हैं, एक दिल होते हैं। आज तो इंसान की हमाकत ही नहीं खत्म होती। एक दिल होना तो जरूर, किसी के पास बैठना कोई पसंद नहीं करता। ऐसी दूरी पड़ गई है इंसानों में, ऐसी मगरूरी उठ गई है, ऐसी हमाकत उठ गई है, ऐसी हमाकत काम कर रही है। हैकलों में ऐसा हो रहा है, एक दिल होके उससे दुआ की जाए। जब ऐसा होगा तब रूहुल कुदस नाज़िल होगा। जब ऐसा नहीं होगा, जब एक दिल होके दुआ नहीं करनी, तो फिर हैकल में आने का क्या फायदा? दुआ क्या है? दुआ खाली मुंह से, अल्फाजों से या हमारे मुंह से नहीं, दिल से उठती है, दिल से। जब हैकल में सारे जमा हैं, या वहां भी लिखा हुआ है सब एक दिल होके, मतलब मुत्तफिक होके, अलग अलग नहीं, सब एक दिल होके दुआ कर रहे थे। हालेलुया। ऐसे ही है। क्या आज गौर करें, हैकलों में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। बाइबल बताती है कि वो लोग कैसे दुआ करते थे। लिखा है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़ कर खुशी सादा दिली से खाना खाया करते थे। यह है रफाकत, यह है अच्छी रफाकत। और खुदा की हम्द करते, खुदा की हम्द भी करते थे, और सब लोगों को अजीज रखते थे, अदावत नहीं रखते थे। ये दूसरी मिशन का या तीसरी मिशन का है, नहीं, सबको अजीज रखते थे। मिशनों की बात तो मेरे जहन से बहुत ऊपर है। लोग आज भी मिशनरियों में बंधे हुए हैं, मिशनरियों में कैद हैं। वहां मत जाना, यहां मत जाना, यहां ही आना। क्यों? आजाद कैसे होंगे? वो चाहते हैं यही कि इनको तलीम ना मिले, ये खुदा के जलाल से महरूम रहें। भाई इब्लीस काम कर रहा है, तोड़िए इब्लीस के मंसूबों को। लिखा है कि हम्द करते और सब लोगों को अजीज
थे और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। हमारी जो बात चल रही थी कि बच्चों को बपतिस्मा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे तौबा कर सकते हैं। पतरस ने कहा ना, पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुआ है वो क्या गुनाह करेगा, क्या माफ़ी मांगेगा गुनाहों की, कैसे उसको निजात मिलेगी? ये बड़ों के लिए है, ये जवान लोगों के लिए है, जो भटके हुए हैं ये उनके लिए है। आइए देखेंगे, मेरे साथ आखिरी हवाला देखिएगा, अमाल 8 बाब उसकी 35 आयत पर हम गौर करेंगे। 35, 36 और 37 आयत। अमाल 8 बाब 35, 36 और 37 आयत। फिलिप्पस ने अपनी ज़बान खोलकर उस नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? आगे यहाँ पे बहुत से सवाल उठते होंगे, यहाँ के भी पानी का बपतिस्मा नहीं लिखा हुआ, खाली बपतिस्मा लिखा हुआ है। लेकिन आज साफ साफ बात आ गई है। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है? हालेलुया। ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब मैं बाइबल के जरिए आपको बता रहा हूं। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको बाइबल में से बता रहा हूं। ये खुदा की मेहरबानी है, खुदावन ने ये दिलेरी मुझे बख्शी है और मैं दिलेरी के साथ उसका कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। और सुनिए, और खाली सुनने तक नहीं बल्कि इस पर अमल करें, इस कलाम को सीखें, दूसरों तक बताएं कि भाई आप जो लोग गलत तालीम देते हैं उनकी तालीम से उनको रोकिए, उनको टोकिए। कैसी तालीम दे रहे हैं आप? बाइबल क्या कहती है बपतिस्मा के बारे में? बहुत से हवाला जात हैं जो बपतिस्मा के बारे में हमें क्या कुछ सिखाते हैं। उसने कहा, खोजा ने कहा, देख अब पानी भी मौजूद है, अब मुझे कौन सी चीज रोक सकती है? क्या कोई बच्चा पैदा होता है, उसको बपतिस्मा दिया जाता है, गुनाहगार होता है, वो तो अभी तक गुनाह को जानता भी नहीं, वो तो अभी तक ये भी नहीं जानता कि उसकी मां कौन है, उसका बाप कौन है, फिर उसको बपतिस्मा कैसे? बपतिस्मा क्या है? समझिए क्या है बपतिस्मा, सीखिए। कलाम हमें सिखाता है। अपने इल्मों को जो आपने बढ़ाया हुआ है ना उसको छोड़िए, बाइबल क्या सिखाती है उसको सीखिए। और आप जो इनके इल्म के पीछे चलते हैं, जो अपने इल्मों को सिखाते हैं, छोड़िए उनको, बाइबल को सीखिए। ये बाइबल हमें क्यों मिली है? हमारे बाप, रूहानी बाप से क्यों मिली है? हमारी तरबियत के लिए। तो तरबियत हासिल करें ना, इसको छतियों पर रखने के लिए नहीं है, या इसको साफ करने के लिए बार बार साफ करो और उधर रखो और उधर रखो, टेबलों पर रख दो, नहीं। इसको खोलिए, इसको पढ़िए, ये तरबियत के लिए है। क्या छोटा बच्चा जिसको बपतिस्मा दिया जाता है पैदाइश के बाद, क्या उसने कोई गुनाह किया? उसको निजात की उस टाइम जरूरत है? उसने गुनाह ही नहीं किया तो निजात कैसे होगी? क्या वो कहेगा कि मैं यीशु को कबूल करता हूं? नहीं। इन बातों पर गौर करें जो मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम हमें बताता है। मैं अपनी तरफ से नहीं, खुदा के कलाम में से, बाइबल में से आपको बता रहा हूं। ये बातें आपको वक्ती तौर पर सख्त लगेंगी, लेकिन ये सच्चाई है। लिखा है, जो सच्चाई से वाकिफ होंगे सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। क्या आप चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं या जकड़ा रहना चाहते हैं? ये अब आप पे डिपेंड है। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, यहोवा की जो बचाता है या शैतान की जो मिटाता है, आपके हाथ में है। वक़्त, बहुत से लोग कहते हैं कि कितनी देर से हम सुन रहे हैं कि लोग कहते हैं वक़्त करीब है, वक़्त करीब है, यीशु आने वाला है, अभी तक नहीं यीशु आया। लेकिन भाई जब वो आएगा ना, लिखा हुआ है वो दिन चोर की मानद है। चोर कभी किसी घर वाले को बता के नहीं आता कि आज मैंने आके तेरे घर में चोरी करनी है।
ऐसे ही इब्ने आदम आएगा, अपने जलाल में आएगा। जो तैयार होंगे वो तो उसके साथ हवा में उड़ के उसका इस्तकबाल करेंगे। जो तैयार नहीं होंगे, जो मिशनरियों में फंसे हुए हैं, फंसे रहेंगे, फैसला आपने करना है। इसी के साथ आप सबकी सलामती चाहते हैं। अगली वीडियो के साथ अनकरीब हम फिर आपसे मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन।